Welcome back for the chapter Accounts of Amalgamation of Partnership Firm. So today we are going to solve one practical example. Till today we have done practical solution, examples of all the solutions till preparation of balance sheet. मतलब अब तक हमने जो एग्जांपल्स करे हैं वो सब में क्या किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर नई कैपिटल दे रखी है तो हम लोगों ने कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट अकाउंट्स वी हैड प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट. अब जब हम एनईपी में देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत कम हो गया. प्रीवियसली इट वाज ऑफ 20 मार्क्स, नाउ इट इज ऑफ 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स में आपको मोस्ट प्रोबेबली जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और अभी इसके बाद भी जो 2-3 सेशंस आएंगे, दैट विल बी प्योरली फॉर जर्नल एंट्रीज. मतलब एक एग्जांपल लेंगे और हाउ वी कैन पास द जर्नल एंट्रीज फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल. So let's start it with reading the example. Two firms A, B and C, D agreed to amalgamate as on 1st January 2019 under the name Shri Ram Brothers. The balance sheet on the same date is as follows. So we are given balance sheet of AB firm and CD firm. These are all the liabilities. These are all the assets. Moving towards adjustments. A and B shared profit and loss in the ratio of 4:3, and C and D shared profit and loss in the ratio of 3:2. So we are given old profit sharing ratio for both the firms, AB firm and CD firm. The following terms and conditions were agreed upon for amalgamation of both the firms. Now let's check adjustments. Goodwill is to be valued at rupees 1,40,000 for AB firm and 1,20,000 for CD firm. We are given straightforward the amount of new goodwill. Some other adjustments related to assets and liabilities were as follows. In both the firms, machinery is reduced by 10%. Machinery is reduced. Value of investment increased by 15%. Stock of AB is increased by 10%, whereas stock of CD is reduced by 15%. यहाँ पे AB की जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10% इंक्रीज हो रही है और CD की जो स्टॉक है वो 15% डिक्रीज हो रहे हैं. Provide 7% bad debt reserves on debtors. New firms accept creditors with 5% discount reserve. Bills receivable of firm AB is taken over by partner B. मतलब ये ऐसा एडजस्टमेंट, कोई असेट है जो पार्टनर ले जा रहे हैं. Remaining assets and liabilities taken up by new firm at book value. Pass necessary journal entries and in the books of both the firms. देखो आगे यहाँ पे हमें पूछ के क्या रखा है, जर्नल एंट्रीज सिर्फ लिखनी है. अब तक हमने जो 6 एग्जाम्पल सब किए हैं उसमें क्या करा है, सब अकाउंट्स करे. अब हम पहले अकाउंट करेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज. कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, अकाउंट के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर एक ऐसा एग्जांपल आएगा जिसमें हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करेंगे. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन, लेट्स चेक आउट द स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जांपल. ये हमने बहुत बार किया हुआ है. आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस एंड द रिजर्व सरप्लस टू कैपिटल अकाउंट, give the effect of new goodwill to capital account, effect of assets and liabilities not taken by new firm, that is to be transferred to capital account, transfer or profit or loss from profit and loss adjustment, effect of new capital, इस एग्जाम्पल में हमारे पास नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास necessary journal entries and at last opening balance. इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज देनी है. Let's check it out. So for preparation of profit and loss adjustment account, it is to be prepared with the help of old and new value of assets and liabilities. मतलब जो assets and liabilities का हम revaluation करेंगे उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ देयर इज एन असेट, अगर उसमें इंक्रीज होता है तो वो हमारा प्रॉफिट है, असेट में डिक्रीज होता है तो वो हमारा लॉस है.
Likewise, if liability increases, it's a loss. Liability decreases, it's a profit. The profit or loss of this particular account is transferred to capital account in given profit sharing ratio. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. एकदम इजी एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं होना है. So these are adjustments for profit and loss adjustment for AB firm. बुक वैल्यू एज पर बैलेंस शीट. और हमारे पास एडजस्टमेंट्स कितने हैं? मशीनरी रिड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज फॉर ABCD, bad debt reserve on debtors, creditors discount and bills receivables. So on the basis of these adjustments that are given in example, we can easily prepare profit and loss adjustment account for both the firms. Look at here. These are book value as per balance sheet. एडजस्टमेंट कौन कौन से कंपोनेंट में देके रखे हैं? मशीनरी में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट है, स्टॉक में कुछ चेंज हो रहा है और डेटर्स में कुछ चेंज हो रहा है. इसके अलावा हमारे पास एक क्रेडिटर्स भी है. तो ये जो है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मशीनरी बुक वैल्यू, ऑल दिस वैल्यू बुक वैल्यू आर ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट. मार्केट वैल्यू वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है. मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 15%, stock is increased by 10%, debtors with subject to 7% bad debt reserve, creditors with 5% discount reserve. So if we make the detailed calculation on this, machinery reduction, investment plus stock plus 8,000, debtors minus 4,200 and creditors minus 3,000. Now this is what the mathematical part, book value, market value, increase decrease, this is mathematical part. Now what is the accounting part of this particular chapter? If there is an asset, if asset increases, it's a profit, asset decreases, it's a loss. Liability increases, loss, liability decreases, profit. तो देखो यहां पे मशीनरी asset decrease, loss. Clear? Likewise, investment asset increase, profit. Stock increase, asset profit. Debtors asset decrease, loss. बट यहां पे क्रेडिटर्स है, वो लायबिलिटी है, उसमें डिक्रीज हो रहा है, फिर भी वो हमारा क्या है? प्रॉफिट. सो दिस इज सिंपली कैलकुलेशन. ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू credit side of profit and loss adjustment account. All losses on debit side. We can easily close this account. Total of this side is 17,000 minus 14,200 will get 2,800. This profit is to be distributed to both the partners A and B in the ratio of 4:3. तो ये हो गया एकदम इजी मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर AB फॉर्म. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द जर्नल एंट्रीज. अभी यहां पे हम लोगों ने जर्नल एंट्री कैसे करनी है. देखो ये जो है, these all components have effect on credit side of profit and loss adjustment account. It means that profit and loss adjustment account is already credited and all the losses are debited. See here, for loss in revaluation of assets and liabilities, profit and loss adjustment account debited to machinery account to debtors account. प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हम लोगों ने इफेक्ट देके रखी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, उसमें हमने कौन कौन से इफेक्ट दे रखे हैं? मशीनरी, डेटर्स. लाइकवाइज अगर हम प्रॉफिट की इफेक्ट देते हैं, प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, तो प्रॉफिट में हमारे पास तीन कंपोनेंट है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. क्योंकि हमने ये जो कंपोनेंट है इनकी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड देके रखी है. क्लियर? तो हमारे यहाँ पे दो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की फॉर AB फॉर्म. लाइकवाइज देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जर्नल एंट्रीज को हम पोस्टिंग कैसे करते हैं.
हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फिर जर्नल एंट्री कर रहे हैं। पर हमारे जो स्टेप में पहले क्या आता है, जर्नल एंट्री फिर अकाउंट। पर कभी कभी आपको रिवर्स जाना पड़ता है, अच्छे से सीखने के लिए रिवर्स जाना पड़ेगा। लेट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट फॉर सीडी फॉर्म। सेम हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाले। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स में कुछ चेंज है। वी हैव बुक वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मार्केट वैल्यू वो हमने कैलकुलेट करके रखी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट। इफ यू लुक एट प्लस माइनस, मशीनरी minus 8,000, investment plus 9,000, stock minus 5,000, debtors minus 5,600, creditors minus 4,000। यहां तक फिर से एक बार हमारा मैथमेटिकल पार्ट, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग पार्ट, इफ asset increases profit, asset decreases loss, liability decreases profit. So here we have machinery, loss, investment, profit, stock and debtors, loss, and creditors, we have profit. All profits are credited to profit and loss adjustment account. All losses are debited to profit and loss adjustment account. अभी देखो इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ऑल दिस कंपोनेंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। और ये वाले एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एकदम सिंपल। एक बार यहां पे पॉज करो इस वीडियो को, समझने की कोशिश करो कि हम लोग अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ वी क्लोज दिस अकाउंट, वी हैव 28,600 डेबिट साइड, मोर अमाउंट, हायर अमाउंट। वी हैव बैलेंस ऑफ 15,600 दैट इज distributed to partners in 3:2. Now journal entries, as we have discussed, for loss in revaluation of assets, profit and loss adjustment account debited to machinery account, stock account, and debtors account. For profit in revaluation, investment account debited, creditors account debited to profit and loss adjustment account. Easy. तो दो एंट्री एबी फॉर्म के लिए, दो एंट्री सीडी फॉर्म के लिए। पर ये एंट्री कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए। नाउ लेट्स लुक एट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी हियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल अकाउंट, देन वी हैव टू गिव द इफेक्ट ऑफ गुडविल, देन असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन बाय न्यू फॉर्म, मतलब अगर नए फॉर्म में नहीं ले जाना है तो पार्टनर को हमें क्रेडिट या डेबिट करना है। ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, एंड द इफेक्ट ऑफ न्यू गुडविल इफ इट इज गिवन। ये एग्जांपल में हमारे पास नई कैपिटल दे के रखी नहीं है। सी हियर, सो वी हैव ट्रांसफर्ड कैपिटल बैलेंस, रिजर्व फंड, we have given effect of goodwill and transferred profit and loss adjustment जो आगे हमने प्रिपेयर किया था। और यहां पे बिल्स रिसीवेबल टेकन बाय पार्टनर बी। सो दीज आर सिंपल इफेक्ट्स, आगे भी हम बहुत बार ये इफेक्ट्स दे चुके हैं। नाउ इफ यू मेक द टोटल, वी हैव बैलेंस ऑफ 2,73,600 फॉर ए, 1,91,200 फॉर बी। ये अकाउंट हो गया। अब इस अकाउंट की जर्नल एंट्रीज सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल हमने अकाउंट में कौन से साइड क्रेडिट किया हुआ है, मतलब क्रेडिट किया हुआ है ना राइट साइड पे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिटेड, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, जो हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करा हुआ है। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल्स टेकन बाय मिस्टर बी, assets taken by partner, B's capital account debited to bills receivables account. 3 entries in the books of AB firm for capital account,
मूविंग टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर सीडी फॉर्म। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत फास्ट चल रहा है, ये फास्ट नहीं है। आपको पहले अगर थियरी समझ में आ रही है पूरे चैप्टर की, हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे हुए हैं, तो अगर आपको वो प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में कहीं पे दिक्कतें नहीं आ रही है, तो आप जर्नल एंट्रीज बहुत इजीली मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर सीडी फॉर्म, हम लोगों ने बैलेंस ट्रांसफर करी, रिजर्व फंड, गुडविल। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो हमें बैलेंस मिली थी वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। विल हैव बैलेंस ऑफ 2,30,640 फॉर सी, 2,33,760 फॉर डी। हो गया। अब एंट्री हमें किस किस की देनी, एक तो ये गुडविल और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सी हियर, goodwill account debited, that is new firm account debited to C's account to D's account, मतलब goodwill account debited to capital account. And as there is loss in profit and loss adjustment, C's capital and D's capital account debited to profit and loss adjustment. देखो यहाँ पे फिर से हम रिकैप कर रहे हैं, दोनों फर्म की दो दो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की, 4 एंट्री होगी। एबी फर्म की 3 एंट्री कैपिटल अकाउंट में, 4 और 3 7, और ये 2 एंट्री, कितनी एंट्री हुई टोटल, 9 एंट्री। आपके कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स। तो थोड़ा कैलकुलेशन के मार्क्स मिलेंगे, थोड़े आपको जर्नल एंट्रीज के। पर जर्नल एंट्री इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबी फर्म, लॉस इन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन, effect of goodwill, asset taken by partner, and transfer of profit and loss adjustment. 5 entries in the books of AB firm for loss and revaluation, profit and loss adjustment account debited to assets account which have profit. For profit, investment stock creditors account debited to profit and loss adjustment. ये कहां से आई हमारी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। फिर इफेक्ट ऑफ गुडविल, goodwill account debited to capital account, transfer of profit from profit and loss adjustment, profit and loss adjustment account debited to capital account, asset taken by partner, capital account debited to bills receivables asset. 5 entries for AB firm, 4 entries for CD firm, loss in revaluation, profit in revaluation, goodwill, and transfer of profit and loss adjustment. Very easy. See here, loss in revaluation, profit and loss adjustment account debited, all losses are debited, so debited to machinery, stock and debtors component which have loss in profit and loss adjustment calculation. Profit in revaluation, investment account debited, creditors account debited to profit and loss adjustment account. Profit must be credited, so here profit and loss adjustment account is credited. Effect of goodwill, goodwill account, that is new firms account debited to partners capital account. And for loss in profit and loss adjustment, capital account debited, partners capital account debited to profit and loss adjustment account. I hope this is very easy. In the next lecture, we'll do one more practical example, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन करके डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, सो टिल दैट हैव अ गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।